welcome to my YouTube channel, and this is your girl Mohta. I'm a freelance fashion designer and an illustrator. @illustrations by Mohta is my account handle name. You can go and check it out, where I usually post my designs, my illustrations, and talk a lot about fashion designing. I also have my own digital fashion academy where I teach students regarding how they can brush up their creative skills, how they can enhance their creative skills, can monetize their designing and illustration skills just like me, and can earn a lot. So this was all about me. Coming back to today's video, today I'm gonna shoot Q&A video. टाइटल से आप लोगों को पता ही चल चुका होगा. And I have my black coffee. मैं black coffee के बिना कैसे या कॉफी के बिना कैसे रहूंगी मैं यार, मुझे नहीं पता. I just love it. तो आज मेरा स्लीप स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं रात में शूट कर रही हूँ with my black coffee, lots of ice. Okay, so coming back to today's video, I posted this picture on Instagram and मैंने कहा था कि मैं एक entire YouTube वीडियो शूट करूँगी. काफ़ी लेट हो गया है ये वीडियो शूट करते करते, but finally हो रहा है. So I posted this picture and I got lots of questions. तो या तो मैं part 1, part 2 करके शूट करूँगी. Let me know in the comment section after this video is over. So without any further ado, let's get started. I have my mobile here and let's take out all the questions. काफी सारे questions है. Okay. So first question: which color medium do you use for golden shade? Okay, for golden shade I use two things. Either मैं empty refill technique use करती हूँ. Empty refill is खाली जो पेन होती है उसकी रिफिल से I create designs to make it look realistic. उसके ऊपर I just cover it up with yellow ochre color. Yellow ochre एक shade होता है in your Staedtler pack. I'll keep the picture here. You can mix and merge different Staedtler colors also. If you do not have yellow ochre, आपके पास 24 shades pack है Staedtler का. I have 48 shades of Staedtler color pack. So अगर आपके पास 24 है, you can mix match two colors, that is your skin shade and डार्कर ब्राउन कलर. मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, थोड़ा सा मीडियम टोन ब्राउन कलर. यू कैन मिक्स मैच बोथ द कलर्स एंड कैन जनरेट योर गोल्डन कलर. या तो आप इस चीज़ से गोल्डन कलर क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट, ईदर यू कैन यूज मार्कर्स. आई यूज टू टाइप्स ऑफ मार्कर. वन इज टच कूल एंड ओहू. आई कीप द पिक्चर्स हियर. सो ओहू में भी गोल्डन कलर है एंड टच कूल में भी गोल्डन कलर है. तो ऑब्वियसली या तो आप मार्कर से कवर कर लो, और यू कैन मिक्स एंड मैच डिफरेंट कलर्स ऑफ Staedtler are amazing for beginners. बहुत ही अच्छी उसकी emerging technique है, and you can create gradation and a lot of effects. तो best for beginners. So these are the two things which I use for my golden color. Okay, next question is, do you have a course for students who want to clear NIFT entrance? Right now I do not have any course related to how to clear NIFT entrance, but maybe future में मैं ऐसा course कुछ design करूँगी. Right now whatever courses I have, it is basically that how you can monetize your designing and illustration skills, how you can brush up your creative skills, how you can just enhance the skills you have and can work with different clients. Basically all those skills which are very necessary in maintaining or creating your fashion portfolio. Even when you are applying for job or working for client, fashion portfolio is must. So currently in my academy I have courses related to illustrations, that is beginners, intermediate and advanced course. Advanced course is very special to me because it has so many modules, and more modules are also coming. It's on its way very soon, trust me. And second is Boost Fashion Profession, which is a very large course. It is divided into three parts, that is fashion freelancing, which covers everything related to how you can get your clients, how you can optimize your social media profile just like I did, how you can just work with different clients, contracts, price, strategies, everything, how you can just set up your freelance success mindset, and a lot of things which I will tell with my experience in the form of modules. Second is creating your fashion portfolio, that is your mood board, storyboard, client board, basically presenting your stories,
your theme board, inspiration board in a form of fashion portfolio. So how you can do that, different strategies of it, how you can plan and create your mood board in different ways. Then third part is creating your fashion collection, which is including your designs, including your illustrations, and how you can present it, how you can create different templates. So with a lot of resources, this is a huge course and a very special course. Right now module 5 or 6 is still going on. There are total 20-25 modules which I am planning to include in that, because fashion portfolio and fashion collection is a huge topic. So obviously I'll create everything manually and I'll record it so that I can provide most of my creative skills to the students so that they can earn more. So right now I have these courses, but in future I am planning to include embroidery also, that how with embroidery swatches you can play with different designs and different things. Obviously there are lots of planning. Do let me know in the comment section if there's something else you want me to add, so I will definitely consider that. Okay, next question is, do you sometimes want to quit fashion design and then you realize other professions require hard work? Okay, first of all, if you think that fashion designing do not involve any kind of hard work, एकदम hard work नहीं होता है, it's 24/7 glamorous. क्या करता है डिजाइनर? सिर्फ फैशन इवेंट्स जाता है, अटेंड करता है, स्केचिंग करता है, सोर्सिंग कर लिया, बस गारमेंट बन जाता है. ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. There is lot of brainstorming, lot of research. आपको सीजन वाइज, स्टाइल वाइज, ट्रेंड वाइज काफी चीजों से अपडेटेड रहना होता है. काफी सारे एप्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए. दैट इज डीलिंग विद एम्ब्रॉयडर्स एंड टेलर्स, बिकॉज when you will learn, there are so many things you can learn from tailors and embroiderers, trust me, because they are highly undervalued people with a lot of exceptional skills and they can teach you a lot about garment construction. So there are so many small things, fashion business management, how you can just work with different team members, how you can manage your brand. So there are a lot of things, lot of hard work if you are a fashion designer. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं है और दूसरे प्रोफेशंस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, ऐसा एकदम नहीं है. इक्वल है, या आई वुड से ज़्यादा ही है, क्योंकि हमें कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं दे दिया जाता है कि यार आपको इसी बीच में बस काम करना है और यही आपको दिस इज ओनली विच यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू. वी हैव टू रिसर्च अ लॉट, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है. काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशंस लेकर अलग अलग जगहों से हमें एक डिज़ाइन क्रिएट करनी पड़ती है और उस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 50 और डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं. आई रिमेंबर जब मैंने कॉलेज में फैशन कलेक्शन बनाया था, हमारे मेंटोर्स ने हमसे 50 100 स्केचेस बने थे. उसके बाद उसमें से 5 या 6 सेलेक्ट हुए थे. उसके बाद फिर रिफाइन हुआ था कि विच स्केच विल बी द शो स्टॉपर एंड एवरीथिंग. तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. आप कोई भी एलिमेंट अपने स्केच में डाल रहे हो, उसके बिहाइंड कोई ना कोई स्टोरी होती है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत होती है. दूसरी चीज़, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग फैशन डिज़ाइन बिकॉज इट इज़ इन माई ब्लड. आई ग्रू अप वॉचिंग ऋतु कुमार, बैंड बाजा ब्राइड ऑफ सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा शोज, लैक्मी फैशन वीक. मुझे लगता था यार मैं भी एक दिन जाऊंगी, पक्का जाऊंगी, मे बी सून. आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे पता है, मैं जरूर जाऊंगी. So that was it. So I grew up watching these shows, so it is in my blood. तो obviously मैं कभी भी मैंने नहीं सोचा कि मैं फैशन डिजाइनिंग क्विट करूंगी. इवन अगर मैं कभी लो होती थी कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है यार, ये डिजाइन नहीं बन रही है, इस क्लाइंट का काम नहीं हो रहा है, बिकॉज नॉट एवरी क्लाइंट इज अ फिट. Trust me, in freelancing, I think so every freelancer has faced this thing that not every client is a fit. आपको काफ़ी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो. कहने की बात होती है कि यार आप अपने हिसाब से स्केड्यूल कर सकते हो चीज़ें, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स विच इज हैपनिंग. बट इट्स लाइक होल डे वर्क. आप पूरा दिन काम करते हो एंड या दिस इज द रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग. तो बहुत ज़्यादा काम होता है एंड आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग इवन इन माई लोएस्ट डेज. मैं कभी नहीं सोचती थी, मैं बस किसी तरह अपने आप को मोटिवेट करती थी, क्योंकि this is my life and I have chosen this life, so I will not and never regret it, because I love colors. I love being around with fabrics, colors, prints, so that I can take inspirations new day. कितना अच्छा लगता है आप हर दिन उठते हो सुबह and you realize कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज मैं कुछ नया नॉलेज गेन करूंगी, मैं कुछ रिसर्च करूंगी, फिर उसके रिलेटेड मैं डिज़ाइन क्रिएट करूंगी. एंड जब वो डिज़ाइन फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ट्रस्ट मी, वो जो फीलिंग होती है ना,
आई कांट टेल यू गाइस, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ओ माय गॉड, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो ऑब्वियसली आई नेवर क्विट इट। और अगर मैंने 0.0001% अगर मैंने क्विट कर भी लिया तो कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें पैशन का रहेगा, समथिंग रिलेटेड टू पैशन। आई डोंट नो, और ना ही मुझे वो इमेजिन करना है। सो ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो समथिंग रिलेटेड टू पैशन रहेगा ही रहेगा। Next question is, give me tips how I can improve my sketching. Okay, if you're a beginner, what I'll suggest is, first of all, practice line exercises, gradation exercise, and color texture exercise, which I also tell to my these workshop students, beginners और intermediate. line exercises दिखने में बहुत ऐसा लगता है कि यार कौन प्रैक्टिस करेगा, बट ट्रस्ट मी, जब आप फ्री हैंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, चेक्स क्रिएट करते हो, विच इज वेरी 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 बेनिफिशियल जब आप आगे प्लीट्स एंड फोल्ड्स क्रिएट करते हो विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल। सेकेंड इज ग्रेडिएशन एक्सरसाइज। डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन ग्रेडिएशन एक्सरसाइज बिकॉज इट विल हेल्प यू लूजन अप योर हैंड्स। बेसिकली इट विल हेल्प यू कितना ज्यादा प्रेशर आप पेंसिल के साथ और कलर पेंसिल के साथ यूज करो, so that you can create illustrations in a better way. Second thing is, it also helps in the merging part, कि कितना ज्यादा प्रेशर आपको मर्जिंग में लगाना है। आपको कलर्स की नॉलेज होती है बिकॉज आप 2-3 कलर्स एक साथ मर्ज करते हो, फिर एक नया आउटकम उसका होता है। तो 2-3 चीजें मर्ज करने के साथ आपको अपने कलर्स की भी बहुत ज्यादा नॉलेज होती है बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हो, अगर मैं सिर्फ क्लाइंट बेसिस में बताऊँ, इन पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग, जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हो ना, हर क्लाइंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपको कलर्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप ऑन द स्पॉट उसको कोई चीज समझा नहीं पाओगे या उसको सजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज, आई कैन से, कि आप जब क्लाइंट के साथ 1-on-1 मीटिंग कर रहे हो। सेकेंड थिंग, अगर आप ब्रांड या डिजाइनर के साथ भी काम कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो 9 to 5, वहां पर भी कलर नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपको इंटरव्यू में रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, या जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होगे तो यू कांट डिसाइड कि अच्छा ठीक है, इसके साथ मैं कंट्रास्टिंग डाल दूं, इसके साथ मैं मोनोक्रोमैटिक डाल दूं, इसमें मैं ये वाली चीज डाल दूं, इसके साथ मैं ये मर्ज कर दूं। तो ऑब्वियसली कलर नॉलेज ऑफ कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली जब आप मर्ज करोगे, जब ग्रेडिएशन एक्सरसाइज करोगे, तो आपको कलर्स की बहुत नॉलेज होगी। यू विल लूजन अप योर हैंड्स एंड थिंग्स विल गेट बेटर। थर्ड थिंग इज कलर टेक्सचर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट फैब्रिक्स। ये चीजें बाद में जाकर पता चलेगी जब आप ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद आप इलस्ट्रेशन फाइनल क्रिएट करोगे। ट्रस्ट मी, मैंने इन्हीं सब चीज़ों से स्टार्ट किया था। मुझे लगता था मैं कभी भी इतने डिटेल्ड इलस्ट्रेशन नहीं बना सकती हूँ, या मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐसे तो इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ। नॉर्मली स्केचेस बन जाएंगे, हाँ ठीक है, बट धीरे धीरे मुझे एक्सरसाइजेस की ना महत्व पता चला, इम्पोर्टेंस पता चला कि ये ऐसे नहीं पता चलता है। जब आप फाइनली पूरा बनाते हो ना और धीरे धीरे चीजें मर्ज करते हो, जैसे अगर आपके पास मार्कर्स अवेलेबल नहीं है, आपको स्टेडलर से, कलर पेंसिल से पूरा इलस्ट्रेशन बनाना है, ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस व्हाइल डूइंग इट विद स्टेडलर, सो दैट आपके वाइड गैप ना रहे। बट ट्रस्ट मी, जब आप धीरे धीरे मर्ज करोगे, यू विल रियलाइज कि यार ये चीज तो मैंने ग्रेडिएशन में करी हुई है, तो अब मेरे लिए आसान है। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस लाइन एक्सरसाइजेस, ग्रेडिएशन एक्सरसाइज एंड कलर टेक्सचर, एंड देन मूव टू द illustration part. Also for the beginners I would suggest that you can create prints and patterns छोटे छोटे boxes में, small boxes, 5x5 boxes बना लो और उसमें prints and patterns बनाओ। पहले थोड़ा zoomer वर्जन बनाओ, फिर डिटेल्ड वर्जन बनाओ, फिर उन प्रिंट्स को अपने इलस्ट्रेशंस में कन्वर्ट करो। बिकॉज एक बार आप जूमर वर्जन बना लोगे, देन यू नो कि आप कौन से मटेरियल्स यूज कर रहे हो, कौन से कलर्स यूज कर रहे हो, कौन से शेड्स यूज कर रहे हो। आप उसको लिख भी सकते हो कि आप कौन से शेड नंबर की चीजें यूज कर रहे हो। देन कन्वर्ट दैट जूमर वर्जन इनटू डिटेल्ड पार्ट इन योर इलस्ट्रेशन। दैट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। अगर मुझे कोई मोटिव बनाना था और बहुत ज्यादा ही डिटेल था, उसमें सीक्वेंस भी था, पैटर्न भी था, देन उसमें फ्लोरल डिजाइन भी बनी हुई थी, देन पीछे बैकग्राउंड में ओम्ब्रे भी आ रहा था, तो ऑब्वियसली एक स्मॉल पैच आप क्रिएट कर लो, उसके बाद अपना डिजाइन, फाइनल डिजाइन स्टार्ट करो। नेक्स्ट इज वेयर आर यू फ्रॉम? ओके, आई एम फ्रॉम अयोध्या, राम जन्मभूमि। सुना ही होगा यार, राम मंदिर इतना हॉट टॉपिक है। मैं इतनी अच्छी जगह से हूँ यार, सोचो, कदर करो मेरी, कदर। So I am from Ayodhya, Ram Janmabhoomi, and I am currently working from Delhi. अभी मैं घर पे हूँ, home town, but I'll be going back to Delhi, back to work, back to routine, back to everything. Yeah, so I'm working from Delhi, but my hometown is Ayodhya. काफी सारे questions थे यार, अब पता चल गया कि मैं कहाँ की हूँ, ठीक है?
Okay. Next question is, if you are not good in illustrations but you are good in designing, fabric selection, designing outfit, what to do? Okay, obviously sketching will not decide that whether you can become a successful fashion designer or not, or sewing will not decide that you can become a successful fashion designer. ये सब myths हैं, ठीक है. अगर आपका ये strength है कि आप color combination skills अच्छे से use कर सकते हो, then you are good in designing, fabric selections, fabrics की बहुत अच्छी knowledge है, तो obviously आप ये सब अपने सारे strength पकड़ो and try to include these strength इन योर पोर्टफोलियो. जो भी आपका स्ट्रेंथ है, जो भी आपका यूएसपी है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके फिर वैसी चीजें अपने फैशन पोर्टफोलियो में डालो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्ट्रेंथ इलस्ट्रेशंस है, मेरा स्ट्रेंथ एथनिक वेयर है, तो ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में एथनिक वेयर ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, इलस्ट्रेशंस ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे, स्टोरी बोर्ड, मूड बोर्ड्स उस तरीके से बनेंगे कि हाँ, जो मेरा यूएसपी है या मेरा स्ट्रेंथ है, तो मैं उसको ज्यादा एनहांस करने की कोशिश करूंगी अपने पोर्टफोलियो में. तो ऑब्वियसली इट इज नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि आपको हर चीज इंक्लूड करनी है अपने पोर्टफोलियो में. जो भी आपका स्ट्रेंथ है आप कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट हर चीज की ना थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए. तो ईदर यू कैन टेक एनी कोर्स या आप खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो. आई वुड से विद लाइन एक्सरसाइजेस, ग्रेडेशन एक्सरसाइज, छोटे छोटे प्रिंट्स के साथ आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो. बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने डिजाइन जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, आप उसको पेपर में ड्रॉ करोगे, एंड इन दैट वे वो जो पेपर में आप ड्रॉ करोगे वही चीज आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करोगे. सो यू वांट टू शोकेस योर इमेजिनेशन इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन. तो ऑब्वियसली अगर कोई भी आपकी डिजाइन देख रहा है तो वो इलस्ट्रेशन देख रहा है, स्केचेस देख रहा है, तो मेक श्योर कि वो थोड़ा सा अच्छा हो, बेटर ही हो, काफी अच्छा हो, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर डिजाइन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड. अल्टीमेटली डिजाइन्स आपका देखा जाता है, डिजाइन्स के पीछे की स्टोरी पूछी जाती है, मूड बोर्ड देखा जाता है आपके पोर्टफोलियो में, तो ये सारी चीजें ना ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है. तो मेक श्योर कि थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करके एनहांस करो, बिकॉज हर चीज की ना थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिजिटल में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं मैनुअली चीजें करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फोटोशॉप नहीं आता है. अगर मुझे बोला जाएगा फोटोशॉप के साथ काम करेंगे, तो आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ फोटोशॉप, या मैं कुछ ना कुछ अपने आप को अपस्किल करती रहती हूँ, या तो मैं कोई फ्री कोर्सेज ले लेती हूँ, या फ्री रिसोर्सेज के साथ अपना डिजिटल वाली चीजें इनहांस करती रहती हूँ. Because it is very important that you have knowledge about everything. There are so many things related to fashion industry, and जितना ज़्यादा आप knowledge ले पाओ उतना better है. तो obviously अगर आप उसको ज़्यादा enhance कर पाओ तो काफ़ी अच्छा होगा. And जो भी आपकी skills है, जो भी आपकी strength है, उसको ज़्यादा reflect करो. And yeah, that's it. Next question is tips for first year FD students or for beginners. Okay. ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि इफ़ यू आर इन द फर्स्ट ईयर तो आपको क्या करना चाहिए. मैंने ये सब चीज़ें नहीं की थी, बट मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि यार अगर मैं ये करती तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ और पहले आती. सो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट मेंटेनिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, बिकॉज दीज थिंग्स विल हेल्प यू. क्योंकि आप शुरुआत से स्टार्ट कर दोगे तो नेटवर्क आप पहले करना स्टार्ट कर दोगे. यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल विल मोर, बिकॉज यू शुड नो दैट द वर्ल्ड यू आर कम्पीटिंग विद, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें आप कर सकते हो. तो लिंक्डइन प्रोफाइल हो गई, या आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गई है, या आपका बिहांस में पोर्टफोलियो हो गया, ये सब चीज़ें आप पहले से ही स्टार्ट कर दो करना, बिकॉज रादर देन बाद में वो चीज़ लेट हो एंड आप ना कर पाओ. इट्स बेटर कि आप वो कॉलेज डेज में ही कर लो, थोड़ा सा हसल करके, बिकॉज बाद में काफ़ी आसान हो जाएगा. सेकेंड थिंग इज स्टार्ट मेंटेनिंग योर और क्रिएटिंग योर फ्रीलांस पोर्टफोलियो ईदर ऑन अ वेबसाइट. काफ़ी सारी फ्री वेबसाइट्स है, उस पर आप क्रिएट कर सकते हो, so that you can get more and more opportunities, because this college will not teach you to earn money when it's very urgent. So you should always have a backup plan कि कैसे आपको earn करना है. अगर कॉलेज प्लेसमेंट नहीं भी हुआ, आपको कोई कंपनी नहीं मिल पाई, आप अपने थ्रू किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को ले पाओ और आगे काम कर पाओ. तो ऑब्वियसली ये सब बैकअप प्लान्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग यू कैन जस्ट फोकस ऑन, जो भी काम आप कर रहे हो कॉलेज में, जो भी असाइनमेंट्स आपको मिल रही हैं, मेक श्योर कि वो असाइनमेंट्स आप इतने अच्छे से करो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर पाओ. ये चीज़ मैंने भी की थी. आई थिंक सो मेरे सारे फ्रेंड्स ने ऐसा ही किया था. हम लोग जो भी असाइनमेंट्स मिलता था वो इतने अच्छे से करते थे. ईदर द एम्ब्रॉयडरी वन, फैब्रिक वन, स्केचेस, मूड बोर्ड्स, जो भी हमें असाइनमेंट्स मिलते थे, वी ट्राई टू डू इट इन दैट वे कि वो हम अपने पोर्टफोलियो में
डाल पाएं और उस पर हमें रीवर्क ना करना पड़े। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ये नहीं कि असाइनमेंट्स है आपने जैसे तैसे कर लिया, अच्छे से रिसर्च करो सो दैट आपको नॉलेज भी मिले। सेकेंड थिंग, आपको रीवर्क ना करना पड़े उसी पोर्टफोलियो के लिए। सो ऑब्वियसली जो हमारा लास्ट कलेक्शन बना था हमारे कॉलेज डेज में, ग्रेजुएशन जो प्रोजेक्ट हुआ था, तो वो हमने ऐसा प्रिपेयर किया था कि वो हम डायरेक्टली अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। इवन द एम्ब्रॉयडरी फाइल, द फैब्रिक फाइल, द स्केचेस फाइल, all the things or all the mood boards which we have created in this way, और मैंने इसी वे में अपना पूरा पोर्टफोलियो प्रेजेंट किया था ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, और उसी बेसिस में मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था एंड या इन सुवासा। तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो एकदम फाइनल करो। ऑल्सो नेक्स्ट थिंग आई कैन टेल यू दैट अपना डिजिटल वर्क और अपना मैनुअल वर्क दोनों कंबाइन करके अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करो। ट्राई टू कंबाइन बोथ द थिंग्स सो दैट आपके दोनों स्किल्स पता चल पाए। तो अगर मुझे कुछ डिज़ाइंस शोकेस करनी थी तो मैं कुछ फोटोशॉप में बना लेती थी और कुछ डिज़ाइंस में मैनुअली अपने इलस्ट्रेशन के स्किल्स दिखा देती थी। तो ऑब्वियसली यू कैन combine your digital work and manual work to present it in a way in your fashion portfolio. Next and very important, try to find out freelance opportunities in your college days. First year में भी काफ़ी सारे freelancing opportunities मिलती हैं। It's just that आपको वो opportunities ढूंढनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बोला, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके, लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके, लोगों को देख कर उनके साथ कनेक्ट करके, या आप फ्री कोर्सेज ले सकते हो। कोई भी खाली टाइम पर या कोई समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशंस हो, कोई इंटर्नशिप्स कर सकते हो, शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स कर सकते हो विद फैशन स्टार्टअप्स। जो स्टार्टअप्स ब्रांड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के पास काम करो। आई थिंक सो मैं इसी फेवर में रहती हूँ कि आप स्टार्टअप्स में काम करो एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं जब इंटर्नशिप की थी, मैंने फर्स्ट ईयर में भी इंटर्नशिप की थी, क्योंकि obviously try maintaining a good relationship with your seniors, with your teachers, so that उनसे आपको कनेक्ट होने का मौका मिले और वो आपको इंटर्नशिप सजेस्ट कर पाए। सो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर वॉज मैंडेटरी कि मुझे इंटर्नशिप करनी है इन अ डिज़ाइनर। तो मैंने फर्स्ट ईयर सोचा कि व्हाई नॉट टू डू इंटर्नशिप इन एन एक्सपोर्ट हाउस, ताकि मुझे एक्सपोर्ट हाउस की वर्किंग भी पता चले कि वहाँ पर डिज़ाइनर्स कैसे काम करते हैं, वहाँ पर टीम मेंबर्स कैसे काम करते हैं, कैसे बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ऑब्वियसली I talked to my teacher and my mentor, and then I finally got a small short-term internship, क्योंकि मुझे घर जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो obviously these are the things which you can focus on। अगर आप इतने डिसिप्लिन रहोगे तो make sure these are the very important tips which you should remember if you are in first year or second year of college. Also try taking part in so many events. There are so many events in college. तो obviously ये चीज़ मैंने नहीं की थी, but I would suggest you guys to do take part in events because it will boost up your confidence, and obviously जब confidence boost होगा तो आपको वो in your job it will help you a lot। मैंने नहीं किया था किसी भी इवेंट्स में, मैं बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं लेती थी, जो कि करना चाहिए था बिकॉज मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी और मुझे लगता था शायद मैं इस चीज़ में बेस्ट नहीं हूँ। काफ़ी मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी चीज़ों को लेकर, बट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट या मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो काफ़ी मोटिवेशन हुआ। तो ऑब्वियसली डू दैट टेक पार्ट इन इवेंट्स, या कोई भी कॉलेज ऐसी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा है तो डू टेक पार्ट and it will help you. Also, as I've said, which is very important, try maintaining your freelancing portfolio from the very beginning, because at the end of your third or fourth year you will have a proper stage around you regarding freelancing। आप काफ़ी अच्छा freelancing करोगे, या तो आपको कोई opportunity मिल चुकी होगी या at the end of the year आपको मिल ही जाएगी। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आप पहले से ही स्टार्ट कर दो क्रिएट करना। सो या दीज आर द टिप्स रिलेटेड टू the first year or second year students of fashion designing. Next question is how to become a fashion designer when you don't have a degree but have skills. So if you really want to go ahead with this fashion designing thing with no graduation, there are tons of ways, trust me. The only thing you have to focus is how you can implement those skills
or how you can take action towards it by taking out time from the whole routine, from your whole routine. So the ways are, first thing is learn as much as you can from wherever, whoever you can, because जितना ज़्यादा आप learn करोगे उतनी ज़्यादा आपको knowledge मिलेगी, और वही knowledge आप अपने portfolio में add कर सकते हो. तो do network a lot because networking rocks. Second thing is start talking to your tailors, nearby tailors, embroiderers, because as I have mentioned earlier that they are highly undervalued people with exceptional skills and they will teach a lot about garments construction, because हमने कॉलेज में from the scratch चूड़ीदार सलवार pleats and folds क्रिएट किए हैं, जो अब मुझे रियलाइज होती है इसकी इंपॉर्टेंस जब मैं क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग विद क्लाइंट, या आप किसी ब्रांड या किसी डिजाइनर के साथ काम कर रहे हो. कितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों की जरूरत होती है, किसी में कलर कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, किसी में आपकी मूड बोर्ड्स की जरूरत होती है, मूड बोर्ड स्किल की जरूरत होती है, किसी में डिजिटल फॉर्म की स्किल की जरूरत होती है, किसी में गारमेंट कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है. तो मेक श्योर कि आपको इन सब की नॉलेज हो. तो उसके लिए नियर बाय आपके पास जो भी टेलर्स होंगे उनके पास जाओ, फ्री टाइम पे उनसे सीखो, जितना ज़्यादा सीख सके उतना ज़्यादा सीखो. नो योर फैब्रिक्स इनसाइड आउटसाइड. अगर आपको फैब्रिक्स की एकदम नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली गो टू योर लोकल शॉप्स, शॉपकीपर से पूछो कि उनका फ्री टाइम कब है, एंड देन गो देयर एंड आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन, सिल्क या शिफॉन, कितने तरीकों के होते हैं, उनसे छोटे छोटे सैम्पल्स बाय कर लो अगर वो दे रहे हैं, एंड देन मेंटेन अ फाइल एंड सर्च कि हर एक फैब्रिक किस किस गारमेंट्स में यूज होता है, किस में फॉल अच्छा पड़ता है, कौन सा स्लीव्स में यूज होता है, कौन सा फैब्रिक किस गारमेंट के लिए यूज होता है. तो इससे ना आप लोग की ही नॉलेज बढ़ेगी, बिकॉज कॉलेज में ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं. तो जो लोग सीरियसली उस चीज़ को करते हैं तो ऑब्वियसली नॉलेज बढ़ती है, जो लोग सीरियस होकर नहीं करते तो उनको रीवर्क करना पड़ता है. ऐसा हुआ है. तो मेक श्योर दैट ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखो. अदर थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज start creating your social media profile and showcase your talent, because आपके टाइम पर ये बहुत ज़्यादा necessary हो चुका है to get yourself started in this freelancing industry, because जब आपका लोग काम देखेंगे नहीं तब तक वो आप लोग तक अप्रोच नहीं करेंगे, कोई भी क्लाइंट आप तक अप्रोच नहीं करेगा. तो मेक श्योर स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, जिस भी आप प्लेटफॉर्म में कंफर्टेबल हो, स्टार्ट मेंटेनिंग दैट प्रोफाइल एंड स्टार्ट शोकेसिंग योर टैलेंट. अदर थिंग इज क्रिएट एंड प्रैक्टिस स्केचिंग, बिकॉज जो भी आप इमेजिन कर रहे हो डिज़ाइन, वो अपने पोर्टफोलियो में, या आप जॉब के लिए जा रहे हो या आप किसी क्लाइंट को दिखा रहे हो, वो अपने डिज़ाइंस के थ्रू दिखाओगे. तो मेक श्योर कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दो. तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ड्राइंग एज मच एज यू कैन, स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट प्रिंट्स, डिफरेंट पैटर्न फ्रॉम इंस्पिरेशन. आप इंस्पिरेशन ले लो, बेडशीट से ले सकते हो, कर्टन से ले सकते हो, जो आपके आसपास सराउंडिंग्स है वहाँ से आप ले सकते हो. तो उन सबसे इंस्पिरेशन लेकर ट्राई टू क्रिएट योर ओन डिज़ाइन. हर दिन आप एक डिज़ाइन भी क्रिएट करोगे ना तो बहुत 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 फर्क पड़ेगा. एंड ऑल दोज डिजाइन्स यू कैन इंक्लूड इन योर पोर्टफोलियो, यू कैन शो द प्रोग्रेस इन योर पोर्टफोलियो. वो भी काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में प्रोग्रेस दिखा रहे हो कि दिस वॉज द स्टेज यू स्टार्टेड एंड धीरे 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 वो ऐसे डिजाइन में कन्वर्ट हो. आप एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हो. देयर आर सो मेनी क्रिएटिव वेज. तो नेक्स्ट थिंग इज फॉलो फैशन ब्लॉग्स, या आप खुद भी फैशन ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो. अगर आपके पास इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई नॉलेज है तो उसको शेयर कर सकते हो. तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग. ट्राई अटेंडिंग इवेंट्स. अगर आपके लोकल सिटीज में कोई इवेंट्स हो रहा है फैशन से रिलेटेड, ट्राई अटेंडिंग दैट एंड आस्क डिफरेंट स्टार्टअप्स कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उनका कैसे उन्होंने टीम बिल्ड किया, उनका नीश क्या है, उनकी स्टाइल क्या है. डिफरेंट डिजाइनर्स को स्टॉक करो, जो ऑलरेडी इतने फेमस डिजाइनर्स हैं उनको स्टॉक करो, उनका स्टाइल देखो, नीश देखो, एम्ब्रॉयडरी देखो, डिटेल देखो, कलर कॉम्बिनेशन देखो. देन राइट इट डाउन, मेंटेन अ फोल्डर. एम्ब्रॉयडरीज की नॉलेज लो, गो टू योर लोकल एम्ब्रॉयडर्स जो भी आसपास में होंगे, जो हैंड एम्ब्रॉयडर कर रहे होंगे, कैसे आरी वर्क होता है, कैसे वो लोग अपना सेटअप करते हैं. बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा घर से बाहर निकल कर, अगर आपको कुछ लाइफ में करना है. तो ऑल द थिंग्स आर ऑन यू. आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू. या तो मैं कोर्स के थ्रू लोगों को गाइड करती हूँ या मैं अपने वीडियोस के थ्रू गाइड करती हूँ. अल्टीमेटली इट्स यू जिसको एक्शन लेना है. अगर मुझे भी कुछ चीज़ सीखना होगा तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ तक पहुँचने के लिए मैं कोई ना कोई एक्शन लूँगी, या तो मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगी. अगर मैं फ्री रिसोर्स ले रही हूँ तो मैं टाइम निकाल कर उस चीज़ को पढ़ूंगी, समझूंगी, उसकी प्रैक्टिस करूंगी. तो सिमिलरली आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा. अंटिल दिस यू विल नॉट टेक आउट टाइम फॉर योर गोल, फॉर दिस फील्ड, तब कोई फायदा नहीं है. सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस एंड grow your learning through different ways,
and definitely you're gonna succeed into that. Next question is, what type of marker, pencils and pens you suggest for beginners? Okay, for beginners I would suggest you can go for Touchcool markers. मैंने अपनी journey Touchcool marker से use की थी, तो depending upon your budget you can spend 48 shades भी मिलते हैं, 36 shades भी मिलते हैं. Then recently I bought 60 shades, जिसमें और ज़्यादा shades हैं. तो in starting you can go for Touchcool markers, go for alcohol based markers. अगर आपका इतना budget नहीं है, then फॉर स्टार्टिंग जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन की, जिनको नहीं पता है कि ये मैं बना भी पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, तो यू कैन बाय प्रो परमानेंट मार्कर्स. दे कम इन 12 शेड्स उसमें कम होते हैं, बट ऑब्वियसली वो वही काम करता है जो Touchcool काम करता है. एंड दे आर ऑल्सो अमेजिंग, दे आर वेरी चीप, 300-400 bucks में मिल जाएंगे, बट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद दैट. सेकेंड थिंग, द कलर पेंसिल्स आई यूज स्टेडलर्स आर बेस्ट. आई विल नॉट सजेस्ट कि आप प्रिज्मा कलर्स या प्रो प्रिज्मा कलर्स यूज करो, ऐसा कुछ स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसकी ग्रिप तक पहुंचने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. ये चीज मैंने ऑब्जर्व की, आई डोंट नो किसी और ने की है कि नहीं की है, बट दिस आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस. आपका एक बार स्टेडलर में ग्रिप पता चल जाएगा, आप ग्रेडिएशन स्टार्ट कर दोगे प्रैक्टिस करना, या आप कलर टेक्सचर स्टार्ट कर दोगे, तो काफी चीजें आपकी स्टेडलर से ही हो जाएगी. तो आई एम स्टिल यूजिंग स्टेडलर्स, यानी मैं हर बार प्रिज्मा कलर यूज करती हूँ. स्टेडलर्स आर बेस्ट इन मर्जिंग फॉर बिगनर्स, फॉर प्रोफेशनल्स ऑल्सो स्टेडलर्स आर बेस्ट, बिकॉज काफी चीजें मर्ज हो जाती हैं, काफी चीजें बन जाती हैं. तो गो फॉर कलर पेंसिल स्टेडलर. एंड सेकेंड थिंग इज योर मार्कर्स. Touchcool आप या तो इन्वेस्ट कर लो या तो आप प्रो मार्कर्स में इन्वेस्ट कर लो. एंड द बेसिक्स थिंग्स आर दैट योर Apsara glass marker, then your Staedtler charcoal pencil and these glass markers are magic for your illustrations. Even if you are a beginner, these are magic. Charcoal pencil आपके shadows देने में काम आ जाएगा for pleats and folds. Apsara glass marker are basically for highlighting your folds, to give the white space जहाँ sunlight पड़ रही है, उस चीज को highlight करने में glass marker are amazing. And yeah, your pencil, eraser and sharpener, these are the things जो आप beginning में start कर सकते हो invest करना, and then you can start your journey of illustrations. Last question is, hi, for example, if you are hiring a fresher for your label, what questions you will be asking? Okay, अगर मैंने in future brand खोला, definitely I'm gonna do it यार, थोड़ा आशीर्वाद दे दो कि yes Mohita दी you gonna do it. Okay, so अगर मैंने brand खोला, definitely I will not look your age, योर डिग्री, आप कौन से कॉलेज में पढ़े हो, ऐसा कुछ नहीं. आई विल डेफिनेटली सी योर स्किल्स, योर स्ट्रेंथ, योर पोर्टफोलियो, योर प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन योर फैशन पोर्टफोलियो. मेरे लिए पोर्टफोलियो मैटर करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर स्किल. कभी कभी ऐसा भी होता है, कई सारे बच्चे दूसरों का पोर्टफोलियो दिखा देते हैं ब्रांड्स को, तो ऑब्वियसली या तो मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे दूंगी जो आप तुरंत कर पाओ, ऐसा कोई बहुत भारी असाइनमेंट नहीं जिसके लिए एकदम महीने लग जाए या हफ्ते लग जाए. तो ऑब्वियसली एक छोटा सा असाइनमेंट जो 2-3 दिन में खत्म हो जाए, सो दैट आई कैन नो कि हाँ ये चीज उसी ने की है. ये चीज मेरा एक मेन मोटो रहेगा. कोई एज बैरियर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम आपने पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, फर्स्ट टाइम किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, आपको नहीं पता है वर्किंग कैसे होती है. दैट डेफिनेटली ओके, मैं वो चीज सिखाने को रेडी हूँ, बट एक चीज होनी चाहिए उसके अंदर, दैट इज क्यूरियोसिटी. अगर मैंने कोई चीज दी है काम करने को, इफ आई हैव गिवन अ प्रिंट जिससे रिलेटेड 6 डिजाइन बनानी है, तो आई वॉन्ट दैट पर्सन टू गिव मी 8 डिजाइन इंस्टेड ऑफ 6 डिजाइन्स. तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लर्निंग की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें मैं करती थी जब मैं जॉब करती थी. मुझे अगर एक सेट ऑफ प्रिंट्स दिए जाते थे, तो मैं हर प्रिंट की 15 to 20 डिजाइन्स बनाती थी, हर प्रिंट की. सो वो डिजाइन कहाँ होगी, लोअर पार्ट में होगी, चेस्ट में होगी, स्लीव्स में होगी, कौन से पार्ट में उस डिजाइन को मैं इन्वॉल्व करूंगी. तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी, लर्निंग एंड स्ट्रेंथ, स्किल्स. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई एम गोना आस्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आया दैट यू आर फीलिंग सो लो एंड यू आर नॉट लाइकिंग डिजाइनिंग पार्ट एनी मोर, आपको फैशन डिजाइनिंग नहीं अच्छी लग रही है, देन हाउ यू विल मोटिवेट योर सेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें आई विल आस्क आफ्टर लुकिंग द पोर्टफोलियो, तभी आई थिंक सो सारे क्वेश्चंस निकलेंगे कि क्या स्ट्रेंथ, कैसे यूएसपी, हाउ डू यू गेट अपडेटेड विद फैशन नॉलेज, योर स्किल्स, हाउ यू एनहांस योर स्किल्स, लेजर टाइम, फ्री टाइम में फैशन कैसे आप फैशन नॉलेज कैसे एनहांस करते हो, कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हो. तो ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स डू मैटर, कितनी ज़्यादा नॉलेज है, एंड क्या आप मेरे बिजनेस में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो अल्टीमेटली, विच इज
very important. So yeah, obviously all these questions. So yeah, that was it about today's Q&A video. Let me know अगर इसका part 2 करना है in the comment section below. And yeah, do like, share, comment and hit the bell icon so that whenever a new video pops up, you guys were the first one to get notified. So make sure that you hit the bell icon. And yeah, so I'll see you guys in the next video. Bye bye. Keep hustling, keep growing, keep practicing, and don't ignore the opportunities.